السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی لڑکی کا واقعہ بیان کریں گے جس کو اس کی وصیت کے مطابق جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ جو بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگاتا تو وہ لاش منو بھاری ہو جاتی، اس کے بھاری وجود کو کوئی اٹھا نہ پاتا۔ اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ میری 14 سالہ بیٹی نے قرآن مجید حفظ کیا تو وہ گاؤں والوں کو تلاوت قرآن پاک سنا رہی تھی۔ اچانک پولیس آئی اور میری حافظ قرآن بیٹی کو اٹھا کر لے گئی، اسے جیل میں بند کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں جیل سے فون آیا کہ تمہاری بیٹی مر گئی، جیل میں آ کر اس کی لاش لے جاؤ۔ میں میت کو لینے گئی تو میری بیٹی کی لاش بہت وزنی ہو گئی، اتنی وزنی کہ وہ 10 لوگوں سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ پھر ایک عالم کو بلایا گیا۔ جب اس نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ میں آج جیسے ہی جیل میں داخل ہوئی تو ایک لیڈی کانسٹیبل میری طرف بھاگتی ہوئی آئی، مجھے کہنے لگی میڈم صاحبہ سیل نمبر 540 میں چلیں، وہاں ایک چھوٹی بچی فوت ہو گئی ہے۔ کون سی چھوٹی بچی؟ میں نے تو کبھی یہاں کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ میڈم وہ 14 سالہ بچی جس کی عمر کاغذات میں 18 سالہ درج کی گئی۔ میرے چہرے پر مارے حیرت کے سوالات ابھرنے لگے۔ 14 سالہ بچی کی عمر 18 سال کیوں درج کی تھی؟ وہ میڈم اس لیے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، نہ ہی انہیں جیل میں قید کیا جا سکتا تھا۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ بے گناہ لڑکی جیل میں کیوں قید کر دی گئی ہے، جبکہ اس کی عمر محض 14 سال تھی، اور اس بچی کو یہاں قید کیوں کیا گیا تھا؟ جی وہ تو میں نے نہیں بتا سکتی ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ میں نے غصے سے کانسٹیبل آسیہ سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر میرے کمرے سے چلی گئی، گویا وہ مجھے اس بچی کا جرم نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں اپنے پیشے کے ساتھ بہت ایماندار تھی، بھلے میری نوکری چلی جائے لیکن میں کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ سمجھتی تھی۔ میں آج بھی ایسا ہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے اس بچی کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسیہ گھبرائی ہوئی میرے آفس میں دوبارہ داخل ہوئی، بولی میڈم جی وہ بچی دم توڑ چکی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتے۔ آسیہ کی دوسری بات سن کر میں الجھ گئی۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھی، سیل نمبر 540 کی طرف جانے لگی۔ مجھے 15 منٹ لگ گئے تھے۔ یہ جیل بہت لمبی تھی۔ کمرہ نمبر 540 میں پہنچی تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس پاس والے کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے ان رونے والوں کا حال پوچھ لوں۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں جن کی عمریں 30 سے 35 سال تھیں، وہ ایسے رو رہی تھیں جیسے ان کا اپنا بچھڑ گیا ہو۔ میں ان سے پوچھنے لگی کیا ہوا، تم لوگ کیوں رو رہی ہو؟ وہ سب کہنے لگی ہم اس حافظ قرآن لڑکی کے مرنے کی وجہ سے رو رہی ہیں، کیونکہ بھائی وہ تمہاری کوئی رشتہ دار تھی؟ نہیں میڈم، وہ ہماری کچھ نہیں لگتی تھی، مگر وہ تلاوت کیا کرتی تھی روز رات کے 10 بجے سونے سے پہلے، صبح اٹھ کر بھی۔ ہمیں تو پچھلے 6 مہینوں سے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کیا وہ پچھلے 6 مہینوں سے یہاں قید تھی؟ میں نے عورتوں سے سوال کیا۔ جی ہاں، پچھلے 6 مہینے سے وہ اسی جیل میں قید تھی۔ آپ کو آئے ہوئے تو 1 ہفتہ ہوئے ہے، لیکن ہم اسے پچھلے 6 مہینوں سے جانتے۔ ہم اس کے ساتھ مذاق کرتی تھیں، تم اتنی چھوٹی عمر میں جیل آ گئی ہو، ضرور تم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا، اب ساری زندگی تمہیں یہی کاٹنی پڑے گی۔ یہ بات سن کر وہ کبھی بھی نہیں روئی تھی، بلکہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ ہمیں اس کی یہ عادت پسند تھی۔ 14 سال کی اس معصوم بچی کے چہرے میں عجیب سی پختگی اور پختہ ایمان تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم دیکھ لینا، مجھے یہاں سے چھڑانے کے لیے بہت بڑا بادشاہ آئے گا جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر ہمیں تو لگتا تھا وہ پاگل ہے۔ ایک عورت پھر سے رونے لگی، ہائے اللہ، ایسے نصیب کسی کی بیٹی کے نہ کرے، اس بچی کا کیا قصور تھا، وہ تو معصوم تھی۔ میں نے دیکھا کہ جیل میں سب اس لڑکی سے خاص انسیت تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے رونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں لڑکی کی سیل میں آئی تو ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔
मुझे कांस्टेबल आसिया ने बताया, इस बच्ची को खुशबू और इत्र का बहुत शौक था। वो बस एक ही चीज़ मांगा करती थी और ये कि उसके घर में आ जाया करती थी। यहाँ जेल में कोई इत्र लगाता है, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने आसिया से कहा तो उसने सर हिला दिया, मगर वो अभी सच बोलने पर तैयार नहीं थी। फिर मैंने धीरे से आगे बढ़कर उसके जिस्म को हिलाया तो वो ठंडा हो चुका था, अकड़ चुका था। मैं उसे उल्ट पुल्ट करके देखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी रूह वाकई दुनिया से परवाज़ कर चुकी थी। वो देखने में बहुत मासूम मालूम होती थी। उसके चेहरे पर नूर बहुत था। उसके हाथ में एक पर्ची थी जो उसने अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रखी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अकड़े हुए वजूद को खोला। वो पर्ची निकालने में कामयाब हो गई। मैंने देखा, इस पर नीले रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उर्दू में जो बातें लिखी थीं वो मुझे समझ आ गई थीं, मगर नीचे कुछ लाइनें उसने अरबी में लिखी थीं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसने बड़ी मेहनत करके जेल की इंतज़ामिया से इस बात की दरख्वास्त की थी कि जेल के अंदर उसे कमरे में दफन किया जाए। भले उसकी कब्र पर कोई तख्ती ना लगाई जाए, लेकिन वो ये चाहती है कि उसका जनाजा इसी जेल के अंदर दफनाया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि हम लोग किसी तौर पर भी कानून के खिलाफ वर्जी करके एक बच्ची को जेल के अंदर दफना नहीं सकते थे। लेकिन अब जाहिर है इस बच्ची की शोहरत ऐसी थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसकी दुनिया में कोई खुशियां नहीं थीं, लेकिन जाते जाते हमें इस मासूम बच्ची की बात का मान रख लेना चाहिए था। मैंने यही सोचा था। मैं जेल की इंतज़ामिया से बात करना चाहती थी कि इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन इससे पहले मुझे उसके वालिदैन को मौत की इत्तला देना थी। मेरे लिए उस वक्त इससे ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं थी कि मैंने उस लड़की को दफनाने के लिए उसकी वसीयत पर अमल करना था, क्योंकि वो मासूम इस दुनिया से बस एक ही ख्वाहिश अपने सीने में लेकर फौत हुई है। जहाँ उसने जान दी, वहाँ पर उसकी लाश को दफनाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 14 साल बच्ची की मौत हुई क्यों थी। वो तो बिल्कुल ठीक सेहतमंद लग रही थी। फिर ऐसे अचानक उसका मर जाना और ये वसीयत करना मेरी समझ से बाहर था। मैंने सबसे पहले जेल की इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं कानून के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। मगर जो जवाब मिला वो उसी से ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मुझे कहा गया कि मैं इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। कल तक कोई हरकत ना करो, ना ही लड़की के लवाहिकीन को इतला दूँ, ना ही मैं किसी और तरीके का कोई कदम उठाऊँ जिससे कानून को ठेस पहुँचे। मैं समझ गई थी कि हफ्ज़ कुरान बच्ची बिला वजह तो जेल में आई नहीं होगी। इसके पीछे कोई वजह भी होगी, ज़रूर कोई बड़ा हाथ भी इसके पीछे होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जेल के आला इंतज़ामिया को इस बच्ची की एक-एक बात का पता था। मुझे मना किया जा रहा था कि मैं उसके लवाहिकीन को ना बुलाऊं। 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आई, जिसे मुझे इस लड़की के पास लेकर जाना था। डॉक्टर ने फ़ातिमा को अच्छे से चेक किया, उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची की मौत को 12 घंटे गुजर चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात पोस्टमार्टम के बाद बताई जा सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है 14 साल की बच्ची का मर जाना, वो भी अचानक, ये बड़ी हैरानकुन थी बात। तकरीबन 6-7 घंटे गुजरे थे कि जेल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। हमें बताया गया कि बच्ची की लाश को इस गाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि इसके सारे इंतज़ामात घर वाले ही मुकम्मल कर दें। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मैं समझ गई कि यह हाफिज़ा लड़की के रिश्तेदार नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी गरीब सी बच्ची के रिश्तेदार इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले सकते हैं। वो तो एक मामूली सी एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस भी नहीं थी अफोर्ड कर सकते। थोड़ी देर के बाद जेल के अंदर 3-4 औरतें दाखिल हुई, जो किसी बड़े आदमी की मुलाजमाएं लगती थीं। उन्होंने कहा, फातिमा की लाश हमारे हवाले की जाए। मैं हुक्म की पाबंद होकर उन्हें फातिमा तक ले गई। उन लोगों ने लाश उठाने के लिए अंदर कदम रखे, इस लाश को पकड़ा, ऊपर उठाने की 1000 मुमकिन कोशिश की, मगर ना वो लाश उठा सकी
न उसे हिला सकी। उनके चेहरों पर अजीब सी हैरानगी थी। 14 साल की बच्ची को उठाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसका वज़न 30 से 35 किलो होगा, लेकिन वो इस कदर भारी हो चुकी थी कि 5 औरतें मिलकर भी न उठा सकी थीं। एक दूसरे के मुंह तकने लगीं। अब हम क्या जवाब देंगे बड़े साहिब को? इस लड़की की लाश तो बहुत भारी हो चुकी है। लाश जितनी छोटी होती है, गुनाह इतना बड़ा होता है। ये बच्ची किसी न किसी जुल्म की वजह से इस हाल को पहुंची है। अब जाहिर है, जब तक इस जुल्म का मदावा नहीं होगा, तब तक ये नहीं उठेगी। क्या आपने उसे कुछ किया है? उनमें से एक मुलाजिमा ने मेरी तरफ देखकर पूछा था। भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? लाश आपके सामने है। अगर आप उठा सकते हैं तो उठा कर ले जाएं। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक बार फिर जोर से उठाने की कोशिश की, मगर वो उसका एक बाजू भी नहीं हिला सकी। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ी में मौजूद शख्स को इतला देने गई कि उस बच्ची की लाश नहीं उठाई जा रही। वो साहब भी दंदनाते हुए औरतों की जेल में तशरीफ ले आए। शक्ल से तो वो नाली साफ करने वाले लग रहे थे, मगर दौलत की चमक ने उनको जाहो जलाल बख्श दिया था। उन्होंने मुझसे सख्ती से बात की और कहा, सब ड्रामे छोड़कर मैं लाश उनके हवाले कर दूं, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैंने कहा, मैं इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। आप चाहें तो अपने 10-15 और लोग बुला लें। आप लाश नहीं उठा पा रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो हैरत से फटी फटी आंखों के साथ मुझे देखने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो वो लाश यूं की त्यों पड़ी थी। ना ही उसे उठाया जा रहा था, ना ही बाहर लाया जा सकता था। बच्ची के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो इन सब के जहनों पर लर्जा तारी कर रही थी। मैं भी काफ़ी हैरान हो रही थी और वो लोग भी सोच में पड़ गए। फिर मैंने उनको वो पर्ची निकाल कर दिखाई। मैंने कहा, बच्ची की वसीयत है कि उसे इसी कमरे के अंदर दफनाया जाए। शायद इसी वसीयत की वजह से उसके जनाजे को आप हिला नहीं पा रहे। यह हाफिज़ कुरान बच्ची थी, इस पर अल्लाह का करम होगा। किसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो लोग परेशान हो गए। ज़ाहिरी बात है, मेरी बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो आदमी कहने लगा, अगर हम उसे यहाँ दफना देते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैंने उन्हें सीधा-सीधा जवाब दे दिए, चलें, फिर ये मामला हम खुद पर छोड़ते हैं। हम आपको पाबंद नहीं करेंगे। आप जो चाहें इस लाश के साथ करें, लेकिन अगर हमारा नाम कहीं भी आया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बस एक ही बार हाँ में सर हिला दिया था। मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने जेल की इंतज़ामिया को भी इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात नहीं फ़राहम की। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि यहाँ करीबी जामे मस्जिद कौन-सी है? वो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर थी, मगर इतनी भी दूर नहीं थी कि वहाँ पहुँचा ना जा सके। मैं अपनी गाड़ी में वहाँ तक पहुँच गई। सुनने में आया था कि उसके मस्जिद के इमाम साहब बहुत बड़े आलिम थे। मुझे किसी बड़े आलिम की ज़रूरत थी। खैर, ज़ोहर का वक़्त था। मौलवी साहब अपनी नमाज से फ़ारिग होकर ज़िक्र में मशगूल थे। मैं उनके पास जा पहुँची। मेरा हुलिया देखकर वो घबरा गए कि शायद मैं उन पर कोई केस करने आई हूँ। मैंने बताया कि मैं यहाँ एक बच्ची के मामले में कोई बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे तफ़सीलात पूछी। मैंने वो पर्ची भी दिखा दी तो वो कहने लगे, बेटी, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या माहौल है। बच्ची के हाफिज़ कुरान होने का भी कोई सबूत है तुम्हारे पास, या फिर तुमने सुनी सुनाई बात कह रही हो? नहीं अलामा साहब, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। आप खुद चलकर भी उसकी लाश को नहीं उठाकर देख सकते। मुझे तो उसके लवाहिकीन के बारे में मुकम्मल मालूमात भी नहीं है। मेरी 1 हफ्ता पहले यहाँ पोस्टिंग हुई है। मुझे ज़्यादा मामलात का पता नहीं है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी रहनुमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हामी भर ली। वो मेरे साथ जेल में आ गए। मैंने देखा कि वो इस बच्ची को देखकर खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर फ़िक्र और सोच के आसार थे। वो पर्ची लेकर दोबारा पढ़ने लगे। अरबी में लिखी ज़बान उनकी समझ में तो आती थी। ज़ाहिर है मैं अरबी नहीं समझ सकती थी, मगर उर्दू समझ गई थी। उन्होंने कहा, बेटी, इस लड़की ने तुम्हें अपनी कब्र बनाने के लिए यहाँ नहीं कहा। असल में बात कुछ और है। अब
मुझे तुम 3 या 4 मज़दूर बुलवा कर दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात की हिकमत समझाऊँगा। मैं आसिया को लेकर इस कमरे से निकल गई। हमने आस-पास से 3-4 मज़दूर बुला लिए। मज़दूरों के आते ही अलामा साहब ने उन्हें हुक्म दिया, इस आस-पास की ज़मीन को खोदना शुरू कर दो। मैंने कहा, इस बच्ची का क्या होगा जिसका जनाज़ा कमरे की ऐन वसत में पड़ा है? अगर इसी तरह से मिट्टी खोदना शुरू की तो यूँ लाश की बेहुरमती हो जाएगी। अलामा साहब मुस्कुराए बोले, बेटी अब तुम लाश को उठाकर देखो, इंशाल्लाह ये उठ जाएगी। उसे उठाकर बाहर ले जाओ। मैंने बच्ची को हिलाकर देखा तो वो सूखे पत्ते की तरह बेवजन लग रही थी। मैं हैरत के साथ फटी-फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आधा घंटा पहले ये पत्थर की तरह थी और हिल भी नहीं सकती थी। हाँ बेटी, ऐसा ही था, क्योंकि तुम्हें इसकी वसीयत समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझे समझ आ चुकी। चलो शाबाश, इसे उठाकर बाहर ले जाओ। मैंने बच्ची को खुद ही उठा लिया। वो ज़्यादा भारी नहीं लग रही थी। मैंने उसे आसिया के हवाले कर दिया और कहा, इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। जब तक अलामा साहब ने इस कमरे की खुदाई शुरू करवा दी, मैंने लड़की के लवाहिकीन को भी इतला कर दी थी, क्योंकि ना ही मैं इस जिम्मेदार से डरती थी और ना ही मुझे अपनी नौकरी जाने का खतरा था। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसके बाद मेरा अल्लाह पर ईमान मजबूत हो चुका था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बच्ची के कफन दफन की तैयारियां शुरू हुईं। मैं अभी तक किसी सोच में गुम थी कि आखिर इस बहस को इस जेल में क्यों बंद किया गया। मैंने उसके लवाहिकीन से मिलने का फैसला किया। कमरे की खुदाई जारी थी। कुछ देर बाद उसके करीब माँ बाप मेरे सामने बैठे थे। मैंने उन्हें उनकी बेटी की मौत की इतला दी तो वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। बीबी जी, मेरी बच्ची की उम्र ही क्या थी जो जालिमों ने उसे यहाँ बंद किया हुआ था? अल्लाह इंसाफ करने वाला है। वैसे तो मेरी बच्ची के दिल में बचपन से ही सुराख था। डॉक्टर ने कहा था बच्ची ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेगी। अचानक किसी दिन उसकी अचानक मौत हो जाएगी, लेकिन इन जालिमों ने तो उसे पहले ही मार दिया। अब मुझे बता सकती हैं कि आपकी बच्ची इतनी कम उम्र में जेल में क्यों बंद थी? जी, मेरा नाम नौरीन है और ये मेरा शोहर एजाज है। हम लोग यहाँ पास गांव में ही रहते हैं। हमारी अपनी कोई ज़मीन नहीं। हम लोग जिम्मेदार साहब की ज़मीन पर काम करते हैं, उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। मेरी ये छोटी बच्ची जिसका नाम फातिमा है, इसे मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया था। अपने बच्चों को हम दुनियावी तालीम तो दे नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदार साहब ने हमें ऐसा करने से मना कर रखा था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि एक जिम्मेदार कैसे किसी को इस काम से रोक सकता है। मेरी बच्ची ने कुरान पाक इतने अच्छे से हिफ्ज़ किया था कि बड़े बड़े उलमा हैरान रह जाते थे। सब गांव वाले मेरी बेटी से तिलावत कुरान पाक सुना करते थे। वो तिलावत इतनी खूबसूरती से करती थी कि जो भी सुनता वो सुनता ही रह जाता। ऐसा लगता था उसके गले में से किसी और की आवाज़ निकल रही है। इतनी हसीन आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। बस जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी जैसा नेक और शफीक मैंने कोई नहीं देखा। वो सबका ख्याल रखती थी। वो औरत रोने लगी, मगर ये तो बताइए कि जेल में क्यों बंद किया आपकी बेटी को? ये सब जिम्मेदार साहब की बेटी की वजह से हुआ है। एक दिन मेरी बेटी और जिम्मेदार साहब की बेटी खेल रही थी। मेरी बच्ची ने उसे कुछ कह दिया। मामूली सी बात पर लड़ाई हो गई। वो लड़की मेरी बच्ची से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बाप से फरमाइश की कि इस बच्ची को जेल में डलवा दो। अपनी बेटी की फरमाइश पर बड़े साहब ने मेरी बच्ची को जेल में बंद करवा दिया और ये इल्ज़ाम लगाया मेरी बच्ची चोर है। उसने इस घर से सोना चोरी किया है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अभी यकीन रखें, आपकी बच्ची के साथ इस जेल में कोई जुल्म नहीं हुआ। सब लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने उस औरत को तसल्ली देने की कोशिश की कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची बहुत मासूम थी। मुझे इसका इल्म गम सारी ज़िंदगी रहेगा। मुझे इस औरत के ऊपर तरस आ रहा था। इतने में अलामा साहब ने मुझे इतला दी कि कमरे की खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। वो मुझे हैरान कर देने के लिए तैयार थे। मैं अंदर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो वहाँ मजदूर भी नहीं थे। मैंने देखा कि मिट्टी से एक चमकती चीज़ नजर आ रही थी। अलामा साहब ने मुझे कहा, ये उठाओ और इसके माँ बाप के हवाले कर दो। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो बहुत वजनी चीज़ थी, जिसका वजन कम से कम 5 किलो होगा। मैंने जैसे ही उसे ऊपर उठाया तो मेरी आंखों को यकीन ना आया। वो तो सोने की एक थैली थी, जिसके अंदर बेशुमार कीमती हीरे जवाहिरात थे। इसका क्या करना है अलामा साहब? ये यहाँ पर कैसे आए? बस बेटा, जो उस बच्ची ने लिखा था उसका मतलब यही था
इसी वजह से तो उसकी लाश उठाई नहीं जा रही थी। वो सुबह शाम तिलावत कुरान के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगती रहती थी। जितना अरसा वो यहाँ पर कैद रही, वो बस एक ही दुआ करती है, अल्लाह मेरे माँ बाप को अफजल कर दे। उन्हें इतनी दौलत है कि वो किसी के पास मजदूरी ना करें, जिम्मेदार के पास भी नहीं। लम्हा साहब मुझे 10 से 12 मजीद खत दिखाए, जिन्हें देखकर मैं रो पड़ी। इतनी छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती थी, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी। सोने की वो पोटली जब मैंने बच्ची के माँ बाप के हवाले की तो वो भी हैरान हो रहे थे। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैं उनके साथ कोई मजाक कर रही हूँ। गर्चे ये सब कुछ उनकी मौत, बच्ची की मौत का इजाला तो नहीं था, लेकिन अगले साल में इस जिम्मेदार से ज़्यादा जायदाद महलात बनाकर उन्होंने इस जिम्मेदार को हैरान ज़रूर किया था। सच कहते हैं एक हाफिज़ कुरान की दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि उसके सीने में अल्लाह ताला का कलाम महफूज होता है। फिर 1 साल बाद वही जिम्मेदार जिसने इस बच्ची को जेल में बंद करवाया था, उसकी सारी दौलत और इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। आज वो पागलों की तरह सड़क पर भीख मांगता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं इतना जानती हूँ, अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो वो एक ना एक दिन अल्लाह ताला की पकड़ में ज़रूर आता है। इस जिम्मेदार के साथ भी यही कुछ हुआ था। मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।